Good evening, everyone. So, firstly, I would like to thank everyone who took some time out of their busy schedules and joined us today. We really appreciate that. So, moving on, welcome to a talk show hosted by Innocent Wings Club in collaboration with Khwab Zindagi Ke. Joining us today is Miss Molly Said, who is a senior sub editor at the Dainik Jagran and INEX, a journalist, an author, and a social activist. She has been into this social work for quite a while now, and we welcome you, ma'am. So Thank let you. me by let me begin by telling you all something about Innocent Wings Club and Forbes Syndicate. Innocent Wings Club is a youth-led organization which was started by two teenagers in order to raise more awareness about menstruation and to help women across the country in order to supply them. So now I would like to call Vidushi to take this event further. Thank you, Anvesha. Let's move on to thank the person without whom all of this would not have been possible. Dr. Ina Singh, she is the founder of the NGO Khwab Zindagi Ke. She did her schooling and college from Mumbai with post-graduation in organic chemistry. Destiny further blessed her to work as an English language coach and personality development trainer with NIIT, BAFEL, British Lingua, and Swiss School of Languages. She always dreamt of helping the community in some way or the other. It gave birth to an NGO, Khwab Zindagi Ke, that serves the society in women empowerment, environment issues, and animal welfare areas. Now, let us begin with our hearty discussion. Okay. So, ma'am, could you please tell us something about you? This question is for me. Yes, ma'am. All right. Just give me a sec. About myself, I am you can say, an individual who's interested in connecting with the people. That's my favorite work, if you will ask. I love socializing. I love talking. And yes, I have got, if you look at my experience, it has been into training industry, although education doesn't match with that. But continuously, I'm into the trainings, the behavioral trainings with the right from the children till the adults. I have trained people in the age group of, you can say, from 5 years old to 55 years old. That's the range. Now, it has been a wonderful experience, and Khwab Zindagi Ke is close to my heart. It's my passion where I want to be associated with people, helping people out in some way or the other. I had no idea when we started off with Quabs in the year. It started in March 21. Before that, I was a 9 to 5, you can say, employee working in the companies. Before that, I was into the school, then college, then corporates, and then into the teachers training. Still, I'm into the trainings. I do freelance trainings as a consultant, training consultant. But this Khwab Zindagi Ke is very close to my heart. I had a passion, I had a dream to connect with the people around. I never knew how to do it. Like, I really appreciate you kids, you youngsters, teenagers who are working towards this direction. At this age, I never had so much of passion. So I bow to both of you for this wonderful work, what you have started off with, you have thought of. We at this age we are thinking it is never too late to start. That is what I believe in. But if youngsters like you will come in front for such a sensitive topic, I think the world will become a better place for everyone to live. Thank you so much. I will not take much time because the today's show is for Molly ma'am, not for me. So I would like to welcome her. Thank Yes. you. Thank you Thank very you. much. So, Uh, let us begin with our questionnaire with Miss Molly, ma'am. So, mhm. Molly, ma'am, could you please tell us something about your journey? See, dear, everyone has his own journey, and so I am. But can I speak in Hindi? I'm not very fluent in English, so I would like to connect with him in Hindi. Sure, Sure. ma'am. Yeah. So, first of all,
मैं जो चीज एक बताऊंगी, इम्पोर्टेंट जर्नी कई बार नहीं होती है। जरूरी होता है कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस पर हमारा कितना बिलीफ है, कितना हम मानते हैं उसको। तो अगर जर्नी की बात करूं तो बहुत यंग एज में मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे क्या बनना है। दैट आई नो, ऑलवेज नो कि मुझे जर्नलिज्म में जाना है, मुझे रिपोर्टिंग करनी है, मुझे एक जर्नलिस्ट बनना है, मीडिया पर्सन बनना है। So since when I start my schooling as a larger prospect of schooling, that जब मैं 9th में आई तो मुझे मालूम था कि मुझे क्योंकि इस फील्ड में जाना है तो आई मस्ट नो अबाउट एवरीथिंग, एवरी प्रोस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो मैंने साइंस सब साइड से अपनी एजुकेशन स्टार्ट की एंड 9th में मैंने साइंस स्ट्रीम ली और मैंने अपना हाई स्कूल कंप्लीट किया, 10th का बोर्ड एग्जाम दिया एंड आई गॉट फर्स्ट क्लास। एंड देन आई टोल्ड माय पेरेंट्स कि अब मुझे स्विच करना है एंड आई एम गोइंग टू फॉर ह्यूमैनिटीज। उस समय में उसे आर्ट स्ट्रीम कहते थे। तो लकीली मेरे पेरेंट्स थोड़े सरप्राइज तो हुए, पर उनको लगा कि हाँ ये लड़की थोड़ी सी क्रेजी है, तो उन्होंने कहा अच्छा ओके ठीक है। और इस तरह मैंने साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स लेके अपनी ह्यूमैनिटीज की स्टडी की। और इंटरेस्टिंग ये रहा कि मेरे पास 3 लैंग्वेजेस थी, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। और मैंने अपना इंटरमीडिएट किया। उसके बाद ग्रेजुएशन में फिर मैंने अपने सब्जेक्ट चेंज किए और मैंने पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएशन में लिया। फाइनली मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन जर्नलिज्म और मास मीडिया में किया और मैंने दैनिक आज से अपना करियर शुरू किया। आई वॉज द यंगेस्ट जर्नलिस्ट एट माई टाइम जब मैंने जॉब शुरू किया। और वहां से फिर मैं थोड़ा बहुत फ्रीलांसिंग करती रही। उस समय मनोहर कहानियां, माया, ये मैगजीन्स आया करती थी तो मैंने उनके लिए थोड़ा बहुत लिखा। लखनऊ दूरदर्शन के लिए होस्टिंग की, AIR पे कुछ प्रोग्राम्स किए। उसके बाद मैं रेगुलरली दैनिक जागरण से जुड़ी रही और मैंने लंबे अरसे तक दैनिक जागरण में काम किया। और वो टाइम था जब मुझे जिंदगी के कई रंग पता चले, क्योंकि जब आप जर्नलिज्म में जाते हैं तो हम हर क्लास, हर क्रीड, हर रेस के लोगों से मिलते हैं, हर फेस लाइफ का जानते हैं, पॉलिटिक्स को भी जानते हैं, थोड़ा सा सोशल इकोनॉमी वाला जो पोर्शन है उसको भी समझते हैं। और तब मुझे रियलाइज हुआ कि बहुत कुछ है जो इसके अलावा किया जा सकता है। और मैंने अपना एक शौक शुरू किया, डेवलप किया अपने अंदर लोगों को पढ़ने का। Initially, I was not a very talkative child. I am a person who always sit in a quiet and the last benches. Not even कि मैं कभी क्लास में बहुत ज्यादा टॉकेटिव थी या बहुत ज्यादा थी, लेकिन उस वक्त में जब मैंने काम शुरू किया तो मैं काफी लोगों से बात करना चाहती थी और मुझे बातें करने का शौक पैदा हुआ। फिर मेरा शौक थोड़ा सा थिएटर की तरफ हुआ। उसी समय मैंने लिखना शुरू किया और पोइट्री और स्टोरी राइटिंग शुरू की। हालांकि स्कूल और कॉलेज टाइम में मैं डिबेटर थी, तो डिबेट्स मेरा फील्ड हुआ करता था। शायद वो एक था स्पार्क जिसने मुझे जर्नलिस्ट बनाने के लिए वो करा। और लेकिन मेरा पैशन जो है वो जर्नलिज्म के साथ चलता रहा और मैं अपने करियर को करती रही। एक टाइम आया when I got married and I'm expecting for my first baby, then I decided I have to stay back at home और मैं अपने बच्चों को बड़ा करूंगी। And by the grace of God, I got a beautiful little daughter. So I was very happy. I always need a daughter. So I'm very happy. और मैंने 18 साल
एज अ हाउसवाइफ घर में रह के अपने बच्चों को बड़ा किया, जॉब नहीं की। उसके बाद मेरा एक बेटा भी हुआ और वो चलता रहा। उस बीच में मेरा लिखने का और सोशल इश्यूज के साथ जुड़े रहने, सोशली एक्टिव रहने का काम होता रहा। मैं चैट शोज में जाती रही, सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी रही, एनजीओ से जुड़ी रही, उनके लिए काम करती रही। मैंने अपना खुद कुछ नहीं क्रिएट किया, डिफरेंट एनजीओ के साथ जुड़कर मैं काम करती रही। पर मेरा जॉब कभी भी वैसे भी 9 to 5 वाला नहीं था, 10 to 5 वाला। पर उस वक्त तो मैं कोई जॉब नहीं कर रही थी, सिर्फ बच्चों को बड़ा कर रही थी। उसके बाद जब मेरी डॉटर ने हाई स्कूल पास कर लिया, तब मैंने दोबारा जॉब स्टार्ट किया आईनेक्स से, और वहां पर पहले एज अ पार्ट टाइमर ज्वाइन किया, फिर फुल टाइमर हुई, फिर कुछ पेजेस की इंचार्ज हुई, और फिर मैं 12 सिटी के लिए फीचर हेड के तौर पर वहां काम करने लगी। उसके बाद मैंने पर्सनल रीजन से ही अपनी बेटी के एडमिशन कराने के लिए, जब वो इंटरमीडिएट पास कर लिया उसने, तो फिर एक ब्रेक लिया तकरीबन 6-8 महीने का, और उसका एडमिशन बाहर कराया और वापस ज्वाइन किया ऑनलाइन पोर्टल पे, आईनेक्स के ही ऑनलाइन पोर्टल पे। और उसके लिए फिर मैं काम करती रही, जो मैंने लास्ट कोविड पीरियड तक किया। और उसके साथ साथ फिर मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई एक, स्वस्ति के नाम से। और अनफॉर्चुनेटली जस्ट बिफोर कोविड माय हस्बैंड एक्सपायर्ड, तो मैंने उनके नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू की, जिसमें हम टीनेजर्स को ज्यादा इन्वॉल्व करते थे। और मैंने पहला इंटर स्कूल क्रिकेट कंपटीशन करवाया 2019 में, और तब से फिर मैं बहुत सारे लोगों के साथ जुड़कर इस तरह काम करती रही। इस बीच में अभी इसी साल नवंबर में मेरा एक काव्य संग्रह है, साझा स्वप्न। उसमें 12-15 कवि और कवित्रियों के साथ मेरी कविताएं भी हैं। डिफरेंट मैगजीन्स में स्टोरीज छपती रही, पोइट्री छपती रही। तो ये एक जर्नी थी। लेकिन इस सब के बीच में मैंने जो सबसे ज्यादा अच्छा वक्त और जो सबसे ज्यादा चीज समझी, वो था जब मैंने अपने बच्चों के साथ आप टीनेजर्स की दुनिया को देखा। इतनी एनर्जी, इतना पॉजिटिव वाइब्स आती थी हमेशा आप लोगों के साथ काम करते हुए, कि मैं, जब आप लोगों से बात हुई, जब आप लोगों ने कांटेक्ट किया और मुझे इना जी के इनिशिएटिव के बारे में पता चला, और फिर आप लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगा मुझे सच में इसमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि जो सब्जेक्ट आपने उठाया है उसको मैंने फेस किया है, बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ टीनेजर गर्ल, फिर अपनी डॉटर के साथ, और साइमल्टेनियसली अपने बेटे को उसके लिए एजुकेट करते हुए। अब दोनों बड़े हो गए हैं, लेकिन मैं बहुत प्राउडफुली कह सकती हूँ कि मेरे दोनों बच्चे इन चीजों को बहुत अच्छे से समझते हैं। नॉट इवन माई डॉटर, मेरा बेटा भी इतना सेंसिटिव है चीजों को लेके, और वो बहुत सारी शरारतें करता है, बहुत सारी शैतानियां, बहुत सारी कंप्लेंट्स उसकी मुझे मिली। लेकिन एक बात के लिए मैं हमेशा बहुत प्राउड रही कि मेरे बेटे ने कभी किसी लड़की को, कभी किसी गर्ल को, किसी फीमेल को डिसरेस्पेक्ट नहीं किया, डिसरेस्पेक्टफुली बात नहीं की, या उसको एड्रेस नहीं किया। और ये बहुत अच्छी फीलिंग थी कि एज अ मदर आई एम अ सक्सेसफुल लेडी जो कर पा रही है उसको। तो ये टॉपिक मुझे हमेशा लगा कि मालूम होना चाहिए, बहुत गलत फहमियां है। तो मैं सबसे पहले तुम लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि तुम लोगों ने ये टॉपिक क्यों उठाया और कैसे तुम्हारे जहन में आया, ये बताओ। फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं इन चीजों के बारे में क्या सोचती हूँ। पीरियड्स और उसको लेके जो एक स्टिग्मा है लोगों के दिमाग में, जो टैबू है,
उसको क्यों दूर होना चाहिए और क्यों इसे सही प्रोस्पेक्ट में देखना चाहिए. सो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट नो व्हाट यू गर्ल्स आर थिंकिंग, और क्यों तुम लोगों ने इस बारे में सोचा कि इस इशू पे बात की जाए. Yes, ma'am. So, ma'am, for a long time, Vidushan, I faced that there's so much hesitation around this topic. And, everywhere we go, if it's our coaching or our school, nobody wants to speak about it and nobody wants to address it as if it is something to be kept secret, right? And also, when we go outside and we buy a pad, so there's this shame that is associated with that, to buy something like a pad in open. And you know how they cover it in newspapers and black polythenes, just so no one else around you could see it. So this is something that we found is so strange, because it is so normal, and considering there's such a vast population of women living around you, and then too this topic is so much unspoken. That is why, and this is where our inspiration came from. This is where we thought we need to do something, because we knew for a fact that nobody else could. We knew that people around us, even the girls around us, were too hesitant to talk about it. So we thought we should do it. Yeah. Yeah, So- I definitely. हाँ, आप कुछ बोल रहे थे बेटा? Yeah, I was just saying that I definitely agree with Anvesha. All of this prejudice that has been in India, I mean, all over the world about periods for so long, there has to be done. We need to do something about it, and that's when we both decided a few months back that we need to do something. Yeah, that's it. Over to you. ओके, सबसे पहली बात तो बेटा मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू गर्ल्स. एंड सेकेंडली, इस बात को हर एक को समझना पड़ेगा कि ये बिल्कुल शर्म की बात नहीं, ये इस बात का गर्व है कि हम महिलाएं हैं, हम औरत हैं, हम कंप्लीट वुमेन हैं. आपके पीरियड्स इस बात को सिग्निफाई करते हैं. सबसे बड़ी चीज तो एक ये है. और मैं आपको बताऊं, साउथ में बाकायदा एक रिचुअल होता है जब फर्स्ट टाइम कोई लड़की मेंसेस होते हैं, उसको पीरियड्स होते हैं, तो पूरी पूजा होती है, उसको बहुत अच्छे से खुशबूदार चीजों से नहलाते धुलाते हैं, सर में खुशबू देते हैं उसको, और उसको अच्छे कपड़े पहनाते हैं और पूजा होती है. क्योंकि इससे ये साबित होता है कि अब आप एक नॉर्मल गर्ल, कन्या जिसे हम कहते हैं, जो कन्या हमारे यहाँ पूजी जाती है, वो कन्या आप बन गई हैं. तो ये सम्मान का विषय है, जिसको आप इतनी हे दृष्टि से देखते हैं. आप जब बोलते हैं कि प्रकृति क्या है, सृष्टि की शुरुआत क्या है, तो सृष्टि की शुरुआत यहां से होती है. वुमेन, स्त्री एक प्रोडक्टिव इकाई है, निर्माण का अधिकार उसके पास है. ओनली शी कैन प्रोड्यूस, ओनली शी कैन कंसीव. और पीरियड्स ये बताते हैं नाउ शी कैन कंसीव. तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज शर्म की वजह नहीं हो सकती. दूसरी बात यह है कि बहुत सारे हिंदू मंदिर हैं जहां पर देवी के पीरियड्स का कपड़ा प्रसाद में दिया जाता है. सिंबॉलिकली एक कपड़ा देते हैं कि वो उनके रजस्वला होने का प्रतीक है, तो वो प्रसाद में मिलता है. तो ये कैसे छुपाने वाली या शर्माने वाली बात हो गई? हाँ, जितनी चीजें जो एक नियम बने कि भाई 3 दिन औरतें काम नहीं करेंगी या वो किचन में नहीं जाएंगी, इनिशियली जो ये चीज आई थी वो इसलिए आई थी कि उस समय एक औरत का शरीर कंपैरेटिवली वीक होता है, क्योंकि उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस चल रहे होते हैं, तो वो थोड़ा सा वीक होती है, तो उसको थोड़ा रेस्ट मिल जाए, इसलिए ये नियम बना, जिसे रूढ़िवादिता कह लो, ढकोसला कह लो, धार्मिकता कह लो, जो भी कह लो, ये बोल दिया गया कि नहीं, वो तो चीज उसको छुआ नहीं जाएगा, वो तो कुछ जैसे अछूत हो गई, अनटचेबल हो गई, उसको नहीं करने दिया जाएगा.
बाद में जो हमारी संस्कृति या किसी भी धर्म या कल्चर में एक्चुअली कोई गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ हमारी सोच में है। हम बहुत कन्वीनियंटली चीजों को अपने तरीके से ट्रांसलेट कर लेते। पहले बड़ी बड़ी फैमिलीज होती थी, परिवार बड़े बड़े होते थे, ज्वाइंट फैमिली होती थी, सब लोग इकट्ठे रहते थे, तो औरत के ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा होता था। तो ये 3 दिन उसको रेस्ट करने के लिए मिलते थे और उसको कहीं कोने में नहीं धकेल दिया जाता था, वो सबसे साफ सुथरी जगह पर रहती थी, क्योंकि इस समय हाइजीन का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। उसे धूप मिलनी चाहिए, उसे रोशनी में हवादार जगह पर रहना चाहिए, ये सारे नियम होते थे जो सब भुला दिए गए। बस उसको आप कोने में बैठे रहिए, किचन में नहीं जाना है, छूना नहीं है, ये नहीं करना है। आप ये बताने में शर्मिंदा होने लगे कि भाई मैं एक नॉर्मल महिला हूं और महिला होने के एक साइकिल से गुजर रही हूं, तो मुझे रिलैक्स होने दो। इंस्टेड आप छुपने लगे, शर्माने लगे और धीरे धीरे वो चीजें हम पर हावी होने लगी। एक और चीज होती थी जो कहीं से पॉपअप हुई कि साइंटिफिकली भाई ये बहुत वो है कि इस समय औरत को कुछ नहीं छूना चाहिए, किचन में नहीं जाना चाहिए। कोई साइंस नहीं थी, बात सिर्फ इतनी थी कि कभी कभी कुछ लोगों की बॉडी से कार्बन डिस्चार्ज होता है इस टाइम में, स्पेशली नेल्स से या इससे। और अगर आपके हाथ साफ हैं, अपने अच्छे से धोया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी अचार वगैरह, क्योंकि हमारे कल्चर में अचार वगैरह बहुत बनते हैं, तो उनको नहीं छुए क्योंकि उस कार्बन डिस्चार्ज से वो खराब हो सकते हैं शायद। तो भाई आप उसमें हाथ मत डालिए। पूजा नहीं करेंगी या कुछ छुएंगी नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। ये बहुत ही बेसलेस चीजें हैं और एक्सप्लॉयटेशन का एक और तरीका है। दूसरी चीज, आपके कपड़े पर अगर रेड स्पॉट आ गया है तो भाई ये कोई शर्म की बात नहीं है। आप रोते हैं, आंसू निकल आते हैं तो आंखें गीली हो जाती हैं, आप पहुंचते हैं तो रुमाल गीला हो जाता है, तो उसमें शर्मिंदगी की क्या बात है? जैसे आंसू आपकी बॉडी से एक डिस्चार्ज है, रोना आपकी आंखों के लिए बहुत जरूरी है। रोना आपके ह्यूमन होने का, इमोशनल होने का एक सिंबल है। तो आपके पीरियड्स आपके वुमेन होने के और आपके नॉर्मल होने का एक सिंबल है, उसमें शर्म की कोई बात नहीं है। अभी कोई 3-4 साल पहले बहुत अच्छा लगा था, एक लड़की का पोस्ट आया था और उसने फेसबुक पर उसे शेयर किया था विथ फोटोग्राफ्स। वो अपने कॉलेज से लौट रही थी, मुंबई की या कोलकाता की लड़की थी, मेट्रो लोकल ट्रेन से आ रही थी और उसके पीरियड्स अचानक शुरू हो गए और उसकी जीन्स पर रेड स्पॉट बन गया। और तब उस लड़की का, जब वो जा रही थी तो कुछ औरतों ने कहा, अरे तुम इस पर अपना जैकेट उतार के मान लो, अरे तुम चलो हम तुम्हारे पीछे चलते हैं, हम पल्ला कर लेंगे और तुम जल्दी से किसी गाड़ी में बैठ जाओ और चली जाओ। पीछे से लड़कों ने सीटियां बजाई, कमेंट पास किए और उस लड़की ने उस सबको इग्नोर किया और लेडीज को कहा कि इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी, आप परेशान मत होइए, कोई दिक्कत नहीं। और वो अपने घर आ गई। उसके बाद उसने अपनी जीन्स का फोटो और अपना फोटो के साथ पोस्ट अपलोड किया और उसका टाइटल था, आई एम अ वुमन, आई हैव पीरियड्स। तो ये, और उसमें उसने एक्सप्लेन किया कि मैं क्यों शर्माऊं। जब एक पुरुष को, एक लड़के को इस बात से शर्म नहीं आती है कि वो पब्लिक प्लेस पे, रोड के साइड में, किसी पेड़, किसी दीवार के किनारे खड़े होकर यूरिन कर सकता है, यूरिनेट कर सकता है, एंड उसको कोई शर्म नहीं आती, जो एक्चुअली गलत है। तो मुझे क्यों शर्म आए मेरे नॉर्मल होने पर? वो एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल हरकत कर रहा है क्योंकि वो जगह नहीं है यूरिनेट करने की। लेकिन आपके साथ एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसकी वजह से भाई
हो गए पीरियड तो हो गए। ऑब्वियसली हम कपड़ा अगर खराब हो गया तो हम पहन के नहीं घूमेंगे, लेकिन हम घर तक तो जाएंगे ना, उस जगह तक तो जाएंगे जहां उसे चेंज कर सकें। तो उसमें शर्म की क्या बात है? और ये बात आपके स्कूल में, आपके कॉलेजेस में पढ़ने वाले लड़कों को भी समझना चाहिए कि ये किसी लड़की के साथ होने वाली नॉर्मल चीज है। जब आप ऑब्जेक्शन करते हैं लड़कियों के लड़कों की तरह कपड़े पहनने पे, जब आप कमेंट पास करते हैं कि वो तो टॉम बॉय बने रहती है, तो आप उसका मजाक उड़ाते हैं, तो फिर आप उसके औरत होने का, उसके लड़की होने का मजाक कैसे बना सकते हैं? वो तो वही कर रही है ना जो एक लड़की कर रही है, एक जो लड़की के साथ होता है, लड़कों के साथ तो नहीं होता ना। तो इसलिए अपने आप में ये कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। आपके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है। बहुत सारी लड़कियां कहती हैं सारी मुसीबत हम लड़कियों के साथ ही क्यों आती है। ये बिल्कुल मुसीबत नहीं है, ये आपके हेल्दी होने की, आपके नॉर्मल होने की निशानी है। अपने आप से प्यार कीजिए और उन दिनों में अपनी सबसे ज्यादा केयर कीजिए। अपने खाने पीने का, अपने पहनने ओढ़ने का ध्यान रखिए ताकि आपको ठंड ना लगे, आपके हाथ पैर खुले ना हो, आपने साफ कपड़े पहने हो। और जरूरी है हर स्कूल में पैड्स का होना, और आपको कोई शर्म नहीं आनी चाहिए कि आप जाकर उस पैड को निकालें, कॉन्फिडेंटली लीजिए और चेंज करके आइए। और आप बोलिए कि आपको, इवन आपके क्लास में आपका क्लास टीचर मेल हो, आपका टीचर मेल हो, उस समय बोलिए कि सर आई हैव टू गो टू टॉयलेट, मेरे पीरियड शुरू हुए हैं, मुझे पैड्स लेने। आप इस बात के लिए हर स्कूल में हर जगह कंप्लेन कीजिए अगर वहां अवेलेबल नहीं है पैड्स और गर्ल्स टॉयलेट साफ नहीं है, क्योंकि हाइजीन हमारी नेसेसिटी है। हम फिट रहेंगे तभी हम एजुकेशन में या किसी भी फील्ड में अच्छी तरह काम कर पाएंगे। अगर आपके साथी लड़के आपके साथ की किसी लड़की का मजाक उड़ाते हैं, आपका बॉयफ्रेंड, आपका भाई अगर इस तरह की हरकत कर रहा है, तो उसे बताइए कि आप ना सिर्फ हमारा अपमान कर रहे हैं बल्कि अपनी मां बहन का भी अपमान कर रहे हैं, क्योंकि तुम इस दुनिया में हो क्योंकि तुम्हारी मां को पीरियड्स होते थे। और जाके इस बात के लिए उसका सम्मान करो, उसके तकलीफ के इन दिनों में उसके सपोर्टर बनो। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि जब मेरे बेटे को पता चला कि दीदी कि इतना दर्द क्यों हो रहा है, तो हमने कहा बेटा जरा सा गर्म पानी का बोतल लेके आओ, दीदी के दर्द हो रहा है। दीदी के दर्द क्यों हो रहा है, तो मैंने उसे बताया कि देखो ऐसा होता है, हर लड़की के साथ होता है, ऐसे में उसके कभी कमर में या पेट में दर्द होता है, और अगर तुम्हें कहीं भी किसी लड़की के साथ ऐसे दिखे तो उसकी हेल्प करना। और उसको मुझे देख के, अपनी बहन को देख के ये समझ में आया। और एक दिन वो अपने स्कूल में था, ही वॉज इन द 9th क्लास, और उसके साथ की किसी लड़की के साथ ऐसा हुआ, और इवन टीचर ने, मेल टीचर था क्लास में, उसने कहा कि तमीज नहीं तुमको, पीछे जाके बैठो। और लड़के उस पे हंस रहे थे, तो वो लड़की रोने लगी। तो मेरे बेटे ने कहा आप उसके साथ ऐसे नहीं कर सकते, वो तकलीफ में है। और उसको जब कुछ नहीं मिला, क्योंकि तब स्कूल्स में पैड नहीं होते थे, तब ये फैसिलिटी हर स्कूल में आई नहीं थी, तो उसने अपना हैंकी निकाल के उसको दिया और कहा जाओ तुम चेंज करके आओ। और वो उसके साथ साथ पीछे पीछे गया ताकि उसको अनकंफर्टेबल ना लगे। उसके बाद में आकर उसने अपने टीचर से कहा और अपने प्रिंसिपल को कहा कि सर लड़कियों के लिए फैसिलिटी होनी चाहिए, उनको बहुत तकलीफ होती है। पहले उसके क्लास टीचर ने उसे डांटा, लेकिन बाद में उसके प्रिंसिपल ने मुझे कॉल करके रिस्पेक्ट किया कि आपने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है अपने बच्चे को, और ये मेरे लिए प्राउड मोमेंट था। और यही मैं आप लोगों के जरिए से तमाम बच्चों को कहना चाहती हूँ कि आप अच्छे स्टूडेंट होंगे, आप अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन होंगे,
लेकिन आप अच्छे इंसान तब बनेंगे जब आप समझेंगे कि आपके साथ रहने वाली लड़की एक नॉर्मल लड़की है और उसके साथ उसके पीरियड्स मजाक नहीं है। अगर वो लड़का घर जाकर अपनी माँ से ये कहता है कि अच्छा माँ तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए एक कप चाय बनाता हूँ और मैं अपने लिए भी बना रहा हूँ, तुम्हारे लिए भी चाय लाता हूँ, तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम आराम से बैठो। अगर उसकी माँ बहन के साथ कोई गलत बिहेव कर रहा है इन दिनों में, उनको अछूत की तरह वो कर रहा है, तो वो ये कहे कि वो अछूत नहीं है, तब हम एक्चुअल अवेयरनेस ला पाएंगे। और इसके लिए सबसे जरूरी ये है कि आप और आपके साथ की तमाम लड़कियां इस बात से शर्मिंदा होना बंद करें कि उनको पीरियड्स हो रहे हैं। इसमें शर्म की कोई बात नहीं। आपका हेयर फॉल होता है, आपके डैंड्रफ होता है, आप रोते हो, आपको जुकाम हो जाता है, आपको पीरियड्स भी हो जाते हैं, इसमें क्या अलग बात है? अगर कोई पीछे से आपको कमेंट करता है आपकी ड्रेस पे लगे स्पॉट से, तो उसे पलट कर कहिए भाई अगर दिक्कत हो रही है तो तू हमें साफ कपड़े ला दे, और नहीं तो जाके अपना काम कर। रोने की जरूरत नहीं, शर्माने की जरूरत नहीं। लोग चोरी करके नहीं शर्माते, लोग गाली दे के नहीं शर्माते। आप एक नॉर्मल चीज के लिए अगर शर्माएंगे, उसको गलत तरीके से उगाएंगे और से लाउडली आई हैव पीरियड्स एंड आई एम इन पेन, कुछ गलत नहीं कर रही हैं अगर आप अपने लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन मांग रही हैं। ये जो हमारी अपब्रिंगिंग में आ गया है ना कि औरतें सेक्रीफाइस करती हैं, लड़कियों को चुप रहना चाहिए, लड़कियों को सब सहना चाहिए, जो सहने वाली बात है वो हम सहेंगे। जब हम बड़े हो जाएंगे, जब आप मेरी उम्र में आएंगी या मेरे और तमाम औरतों की उम्र में आएंगी जो बच्चों को बर्थ देती हैं, जो बच्चों को पालती हैं, वो तकलीफ हम सहेंगे, वो दर्द हम ही सहेंगे, आप ही सहोगे। लेकिन अपनी संतान को जन्म देने के लिए आपको तैयार होना है, और उस तैयारी के लिए शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं, सहने की जरूरत नहीं। बहुत ज्यादा स्टार्स की बहुत सारी बातें हैं जो हम फॉलो कर लेते हैं, उनके फैशन सेंस फॉलो कर लेते हैं, उनकी स्टाइलिंग फॉलो करते हैं, उनका मेकअप फॉलो करते हैं। एंड इफ यू रियली वांट टू फॉलो समथिंग, तो आप दीपिका पादुकोण को फॉलो कीजिए, बिकॉज शी सेड यस आई एम शोइंग बिकॉज आई हैव क्लीवेज। मैं शो बिजनेस में हूं, मुझे ऐसे आना है, मुझे ऐसे अपने को प्रेजेंट करना है, मैं अपने वर्क को रेस्पेक्ट कर रही हूं। सेम आप इस कॉन्फिडेंस को फॉलो कीजिए कि मैं एक लड़की हूं और मेरे साथ ये चीज पीरियड्स हो रहे हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है। तो ठीक है, आपको दिक्कत है तो आप चले जाओ भाई, हेल्प नहीं कर सकते तो चले जाओ, मुंह बंद रखो। और पीरियड्स में घर बैठ जाने की कि भाई पीरियड होते तो घर बैठती, क्यों बैठती भाई? आज मेरा इवेंट है, मुझे स्पोर्ट्स में पार्ट लेना है, कितनी सारी पीटी उषा को पीरियड नहीं होते होंगे, सानिया नेहवाल को नहीं होते होंगे, सानिया मिर्जा को नहीं होते होंगे, होते हैं ना। लेकिन कभी आपने सुना कि साहब उनको पीरियड्स हो रहे हैं इसलिए वो खेलेंगी नहीं? मारिया शारापोवा ने कभी नहीं कहा कि भाई पीरियड है आज के दिन मैच नहीं होगा, भाई आज तो मैच भले ही ग्रैंड स्लैम चला जाए पर मैं मैच नहीं खेलूंगी, पीरियड्स हो रहे। नहीं होता ना। तो इसमें शर्म की क्या बात है? क्यों हम नहीं खेलेंगे? हम खेलेंगे, हम दुनिया के सामने आएंगे, हमारे पास टैलेंट है, हम उसे दिखाएंगे, सिर्फ इसलिए कि हम लड़की हैं, हमारे पीरियड्स होते हैं,
हम अपने टैलेंट को हाइड करके रखेंगे? नहीं रखेंगे। अगर हम प्रूव कर सकते हैं अपनी काबिलियत, तो हम वो प्रूव करेंगे। और उसके लिए हमें ये कह के पीछे खींचने की कोशिश मत कीजिए। मुझे बहुत अच्छी टैगलाइन लगी थी, हालांकि पॉलिटिकल लाइन है, उसको नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लाइन लगी थी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। तो बिल्कुल क्लियर रहिए, ये कोई अब शर्म की बात नहीं है, ये कोई शाप नहीं है, कोई मुसीबत नहीं है, कोई ऐसा साइंटिफिक रीजन नहीं है जो आपको कहता हो घर बैठ जाइए, छुप जाइए। कुछ ऐसी चीज नहीं। सिर्फ ध्यान रखना है हाइजीन का, डाइट का, और हाँ, हाथ वाथ धो के खाने की चीज छुएंगे तो वो तो वैसे भी हम लोग को सिखाते हैं। मैंने बताया ना, मैंने संस्कृत पढ़ी थी बहुत टाइम तक, तो मेरी तभी से आदत पड़ी। मैंने 8th क्लास में एक श्लोक पढ़ा था जिसमें कहा गया था कि साहब जब भी खाना खाने बैठे तो दोनों हाथ पैर धो के खाना खाने बैठे। तो तब से मेरा नियम है, मैं हाथ पैर धोए बिना खाना खाने नहीं बैठती। ऑफिस में भी लंच टाइम होता था, कुछ होता था, तो पहले जाके हाथ धो के आती थी, फिर खाना खाती थी। वो हाइजीन है। हम अपना कंप्यूटर छू रहे हैं लगातार, हम कुछ काम कर रहे हैं, हम पेन छू रहे हैं, हम साइकिल चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हाथ तो धोएंगे ना अपनी खाने की चीज छूने के लिए। तो बस उतना ही करना है। और आप सोचिए कितनी बेवकूफी की बात है, कितनी कन्वीनियंटली कह दिया जाता है, अच्छा ठीक है फिर सर धो के नहा लो, फिर सारा काम कर लेना। भाई सर धोने का हमारे पीरियड से क्या रिश्ता है? कम हो जाएगा? होना बंद हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो जो चीज एक्चुअली साइंटिफिक है, आपके पीरियड्स होना साइंटिफिक है, बायोलॉजिकल फैक्ट है। एक कंप्लीट परफेक्ट हेल्दी वुमेन के जब पता है आपके अंदर आप एनेमिक हो जाते हो, जब आपकी डाइट कम हो जाती है, तब आपके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। आप स्ट्रेस में होते हो तब इरेगुलर होते हैं। जब आप काम नहीं करते हो, मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, जब तक मैं स्पोर्ट्स के लिए जाती थी, अपने गेम्स के लिए जाती थी, गेम खेल के आती थी, रनिंग करके आती थी, उस समय मेरे पीरियड्स के दौरान मेरे पेन्स कम होते थे, मुझे दर्द कम होते थे, क्रैम्प्स कम आते थे। और जब मैं आलसियों की तरह पड़ी रहती थी, विंटर्स में रजाई ओढ़ के घुस जाती थी रजाई में, तो ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। तब मुझे चाहिए हॉट वाटर बॉटल लाओ, अब पेन किलर खाओ। तो आपका हेल्दी होने की निशानी है आपका रेगुलर पीरियड्स होना। ये घटते बढ़ते रहते हैं, और उस समय अपना ख्याल रखना, उसका सम्मान करना आपका राइट है, आप वो कीजिए। और हाँ, लोगों में जानकारी की कमी है, लोग नहीं जानते हैं, बिना शर्माए, बिना हेजिटेट हुए उसे बताइए, समझाइए। फिर भी अगर नहीं समझता है तो उसे उसके हाल पे छोड़ दीजिए, उसके लिए आप गिल्ट मत पालिए, कोई भी मत पालिए। कोई भी लड़की इस बात का गिल्ट ना पाले कि वो लड़की है, उसको पीरियड्स हो रहे हैं। वैसे ही लड़कियों के ऊपर बहुत बोझ ला दिया गया, लड़की हो ये मत करो, लड़की हो वो मत करो, लड़की हो बोलो मत, लड़की हो बहस मत करो, लड़की हो किसी से कंपटीशन मत करो, लड़कों से कंपटीशन मत करो, लड़की हो तो ये नहीं कर सकती, लड़की हो तो वो नहीं कर सकती। हालांकि आजकल सब कुछ लड़कियां कर रही हैं, रेसलर से लेकर वेट लिफ्टर तक, पायलट से लेकर पुलिस वाली तक, सब जगह लड़कियों ने अपनी एबिलिटी प्रूव की है। आपने किसी पुलिस ऑफिसर को देखा है जो पीरियड्स होता है इसलिए अपनी ड्यूटी नहीं करता? तो इसलिए इन सारी चीजों को आपको पीछे खींचने के लिए ये चीजें बनी हैं। बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल मत शर्मिंदा होइए, और हक से अपनी
सुविधाएं मांगी। ये जो मैं सोच रही थी वो मैंने शेयर किया। अगर आप लोगों के दिमाग में और कोई भी क्वेश्चन है या कोई और बात है तो आप जरूर मुझसे पूछिए, तो शायद मैं उसको समझा पाऊं। Yes, actually, we have a student here today who would like to ask you a question. या श्योर। Yeah, so I'll unmute. He would be joining in shortly. Yeah. Just a second. Sorry, ma'am, the network was very bad. सॉरी। Good evening, ma'am. I'm actually a student of class 12th, and मेरा question actually educational system को pertain करता है. जी। Ma'am, काफी incidents and anecdotes रहे हैं जहाँ पे हमारे teachers, male, female both, काफी misogynistic रहे हैं school में with regarding to female healthcare and female behavior in general. And as far as sex ed goes, ma'am, काफी negligent है school and sex ed काफी non-existential है. And मैम लाइक आपने से मेंस्ट्रुएशन की बात की, हम लोगों को स्कूल में कुछ नहीं पढ़ाया गया मैम. लिटरली वो 2 लाइन की डेफिनेशन है कि यूट्रस लाइनिंग शेड होती है, सिर्फ उतना पढ़ाया गया है. एंड आई रिमेम्बर जब वर्कशॉप हुई थी स्कूल में, जब वो लोग लड़कियों को सैनिटरी एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा रहे थे, तो लड़कों को गेम्स में भेज दिया था एंड सिर्फ लड़कियों को बताया था. एंड फिर बाद में लड़कियों को बोल दिया गया था कि लड़कों को कुछ ना बताओ. तो मैम जब लाइक स्कूल में जो टीचर्स हैं जिनको हम लोगों को एजुकेशनल गाइडेंस देनी है वो इतने मिसोजिनिस्टिक हैं. एंड मैम लाइक मतलब मेरे स्कूल में तो लड़कियों का कैरेक्टर असैसिनेट हर छोटे इंस्टेंस पे होता है. मतलब अगर उनका कुर्ता हल्का सा अनबटन्ड है या फिर उनके बाल खुले हैं तो उस पर सीधा उनके कैरेक्टर असैसिनेट करना चालू कर देते हैं टीचर्स. तो हम लाइक हम लोग ऐसे एजुकेशन सिस्टम में कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बेटा सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मे आई नो योर गुड नेम प्लीज? अलक्षेंद्र भारद्वाज मैम. ओके अलक्षेंद्र, सबसे पहले तो मैं एक चीज आपको बताऊं कि ये जो क्लासिफिकेशन है, ये जो डिफरेंशिएशन हो रहा है, जो सोच का वो है, ये केवल आपके स्कूल की देन नहीं है. हमारे एजुकेशन सिस्टम में फर्स्ट ऑफ ऑल कभी ये नहीं कहा गया कि मुझे ऐसे किसी स्कूल किसी उसमें ये गाइडलाइन नहीं मिली कि आप लड़के या लड़कियों के कपड़ों की, ड्रेस की लेंथ से लेकर उसकी फिटिंग तक जज करोगे. किसी स्कूल के उसमें नहीं कहा गया, कोई गाइडलाइन ऐसी नहीं है. हेयर स्टाइल कैसा हो, नेल पेंट क्यों लगा है, क्यों नहीं लगा है, ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं कहीं मुझे दिखाई दी जब भी मैंने स्कूल में एजुकेशन के उस पर गई. दूसरी चीज जो ये बात है बेटा, उसमें प्रॉब्लम शायद टीचर्स के साथ नहीं है. मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि वो आए तो इसी सोशल बैकग्राउंड से है ना, वो इसी सोशल टैबू के साथ जीते रहे. आपने कभी अपने घर में अपनी मम्मी को डैड के सामने अपनी सिस्टर की पीरियड्स की बात डिस्कस करते देखा है? कभी क्या आपने कहा है कि मम्मी ने आवाज लगा के कहा सुनो जरा एक पैड लेते आना, विस्पर लेते आना या स्टेफ्री लेते आना क्योंकि बेटी को जरूरत है? या बेटे से कहा हो कि जाओ जरा दौड़ के ले आओ मेडिकल स्टोर से, सर दर्द की दवाई लेने जाता है ना? वो नहीं कहा जाता. उसी बैकग्राउंड से निकलकर आपके ज्यादातर टीचर आए. अगर मैं बोल पा रही हूं या आपके एक आध टीचर बोल पाते होंगे तो शायद इसलिए कि उनको थोड़ी सी एजुकेशन शायद उनकी फैमिली से ही मिली. तो सबसे पहले ये सोचना बंद कर दो कि वो जान के ऐसा करते. एक्चुअली वो बेचारे जानते ही नहीं कि उन्हें इस बारे में बात भी करना चाहिए. हाँ,
जो प्रॉब्लम है वो एडमिनिस्ट्रेशन और शायद हायर लेवल पर लोगों के साथ है कि वो उनके अंदर वो इंतजाम खत्म हो चुका है कि हमें कुछ नया सीखना है, कुछ नया बताना है। स्टीरियोटाइप टीचिंग के साथ साथ स्टीरियोटाइप लाइफस्टाइल हो गया। जब स्कूल में ये एजुकेशन देने के लिए, सेक्स एजुकेशन देने के लिए एक टीम आई पीरियड्स के बारे में बताने, सैनिटरी पैड को इंट्रोड्यूस करने के लिए या उसका प्रमोशन करने के लिए जब टीम आई, तो वाकई में ये ध्यान आना चाहिए था कि भाई लड़के और लड़की का क्लासिफिकेशन क्यों? लड़कों को क्यों नहीं मालूम होना चाहिए कि उनकी फ्रेंड के साथ क्या प्रॉब्लम? ये बिल्कुल वैसा ही सोच है कि लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते। अगर वो दोस्त हो सकते हैं तो एक दूसरे की प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। दोस्त और क्या होते हैं? मैं अपनी दोस्तों के साथ सारी प्रॉब्लम शेयर करती हूँ, और ये तो क्योंकि ये सोच ही नहीं है तो इसलिए उनको नहीं बताया गया और उनको क्लास से बाहर कर दिया गया। फिर लड़कियों से कहा गया कि आप भी मत शेयर करना। अगर को एजुकेशन में ये सारी चीजें एक साथ पढ़ाई जा रही हैं, आप स्पोर्ट्स एक साथ करते हो, आप एक्टिंग एक साथ करते हो, प्लेस साथ साथ करते हो, क्लासेस साथ साथ लेते हो, एक जैसी लैब में जाते, अभी आप मेडिकल स्टूडेंट हो जाओगे तो क्या लड़के और लड़कियों के लिए अलग लैब बनेगी? नहीं, सेम लैब में। मेरे अपने फ्रेंड ब्रदर सिस्टर दोनों डॉक्टर एमबीबीएस कर रहे थे, और उन लोगों को डिसेक्शन के लिए जब बुलाया गया तो एक ही नेकेड बॉडी पड़ी हुई थी, और जिसपे डिसेक्शन करने के लिए दोनों बहन भाई खड़े हुए थे, और वहां ऑर्गन्स के बारे में बताया जा रहा था। तो प्रॉब्लम सोच की है और उनके बैकग्राउंड की है, उनकी अपब्रिंगिंग की है। थैंकफुली आप बच्चे अब आगे आ रहे हो, आप में एक अवेयरनेस है, एंड आई होप कि फ्यूचर में आप में से जो एजुकेशन लाइन में जाएंगे वो इस बात को बहुत अच्छी तरह कह पाएंगे कि भाई ऐसा नहीं है, एजुकेशन दोनों को चाहिए। अगर परिवार दो लोगों से शुरू होता है तो दोनों को मालूम होना चाहिए कि एक हस्बैंड क्या सोच रहा है, एक वाइफ क्या सोच रही है। हस्बैंड की ऐसा नहीं है कि लड़कों की प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, उनको सेक्स एजुकेशन नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए, और पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि वो इस चीज के लिए बोलें, उससे हेजिटेट ना करें कि भाई स्कूल में सेक्स एजुकेशन का पीरियड एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। एटलीस्ट जैसे जैसे आप 7th और 8th पास आउट करके आते हो तो आपके लिए ये होना चाहिए। दिक्कत है, लेकिन जैसे जैसे दिक्कत सामने आती है, आज सवाल उठे हैं, कल उसका सॉल्यूशन भी आएगा। बहुत ऐसा नहीं है कि हम आउटरेजली ये कह सकें कि सब गलत है। गलत नहीं है, अभी तक किसी ने सवाल नहीं उठाया था, लोगों ने इस बात पे अपनी एक जिज्ञासा नहीं रखी, और रखी भी तो शायद कुछ लोगों ने बहुत फूहड़ तरीके से रखी। जब शुरू शुरू में सेक्स एजुकेशन की बात हुई थी तो लोगों ने उसको बहुत क्रिटिसाइज भी किया था, बहुत बड़ा चंक था जिसने क्रिटिसाइज किया था कि साहब ऐसा होगा तो, इवन यहां तक कह दिया गया था कि अगर सेक्स एजुकेशन दी गई तो रेप बढ़ जाएगी। अभी भी कोई कमी नहीं है, लेकिन उसकी वजह लैक ऑफ एजुकेशन, हमें नॉलेज नहीं है, शायद उसकी ये वजह ज्यादा है। अगर हमें नॉलेज होती तो हम इतनी परवर्टेड सोच नहीं रखते, तब हम जानते कि हम सही और गलत क्या है। तो ये एक वजह है। मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल बताऊं कि जहां समझ होती है ना, जहां अगर आप चीजें समझने लगते हो, अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। अभी आप कपड़ों की और उसकी बात कर रहे थे, मैं जब जर्नलिज्म कर रही थी तो मेरे इंस्टीट्यूट में मैं एक दिन गई, और उन दिनों वो लंबी जिप, बैक जिप वाले कुर्ते चला करते थे, तो मैं सलवार कुर्ता पहन के गई थी, और मेरे
कुर्ते की जिप खराब हो और ऊपर हुक लगा था, बीच से जिप खराब हो गई, वो पूरा ऐसे खुल गया। और जर्नलिज्म में आप जानते हो बहुत ज्यादा लड़कियां वैसे भी नहीं होती हैं, और मेरे साथ बहुत सारे लड़के ही मेरे दोस्त थे, मेरे हमेशा लड़के दोस्त बनते थे। और मुझे पता नहीं कि मेरे साथ ऐसा हो गया है। मुझे टेम्पो से वापस आना था और मैं बाहर निकलने गई तो लगी, तो पीछे से मेरे एक फ्रेंड ने मुझे आवाज दी, रुको रुको मौली, रुको 1 मिनट। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो बोले कि रुको 1 मिनट आ रहे हैं, तुम यहीं खड़ी रहो, बाहर नहीं जाना। तो हम खड़े हो गए कि किसी काम के लिए बुलाया होगा। फिर वो मेरे पास आया और बोला, यार तुम्हारे कुर्ते की जिप खराब हो गई और वो खुल गया है। तो पूरी बैक मेरी ओपन थी। तो मैं परेशान हो गई कि मैं कैसे जाऊं। बोले चलो रुको अभी कुछ करते हैं। तब तक 2-3 लड़के और आ गए, वो सब लड़के, कोई लड़की मेरे पास नहीं आई, वो सारे लड़के मेरे पास। उसके बाद एक लड़का बोला, अरे बहुत अच्छा आइडिया है, और वो भाग के गया हमारे ऑफिस में, जो ऑफिस था उसका, वहां से स्टेपलर लेके आया और मुझसे कहता पीछे घूमो। तो मैं घूम गई और उन लोगों ने मिलके पूरा बैक मेरा स्टेपल कर दिया कुर्ते का, और पीछे से पट्टा शॉल की तरह लपेट के बोले अब जाओ, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर वो मुझे टेम्पो तक छोड़ने आए। और वो सब कॉमन मिडिल क्लास लड़के थे, टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली से आए हुए लोग, जिनके पास शायद ऐसी कोई एजुकेशन नहीं थी, लेकिन एक विजन था, एक ब्रॉड माइंडेडनेस थी उनके दिल में। और किसी के लिए शायद ख्याल ना हो, पर उनके अंदर ये था कि ये हमारी दोस्त है और हमारी दोस्त प्रॉब्लम में। तो जब आप ये समझ लेते हो ना कि ये हमारा दोस्त है, तो आप दोस्त की प्रॉब्लम भी समझते हो। तो बात नजरिए की, और ये नजरिया हम या तो घर में दे सकते हैं या अपने स्कूल्स में दे सकते हैं। तो टीचर्स को ऑब्वियसली ये समझना पड़ेगा, पर क्योंकि वो ये नजरिया अपने बैकग्राउंड से नहीं लाए हैं, इसलिए वो आगे उसको फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं। पर आई एम श्योर कुछ टीचर्स ऐसे जरूर होंगे जिन्होंने आपको इस बारे में बताया होगा और उन्होंने आपकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड किया होगा। मे बी कुछ टीचर्स ने आपको जरूर ये समझाया होगा, तब आज आप ये सवाल कर पा रहे हैं, वरना तो आप सवाल करने में शर्माते और झिझकते। तो ये इस चीज को मैं इस तरह से कहूंगी कि दिक्कत हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं है। ये जो सोच है ये हमारे समाज की है, हमारी सोसाइटी की है, और वही टीचर्स तो उसी से आ रहे हैं। अगर कोई टीचर ऐसा करते हैं तो उसकी वजह ये है। और आप भी डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए, पर रेस्पेक्टफुली कहिए कि हम जानना चाहते हैं और ये हमारा अधिकार है। अगर फिर भी वो नहीं बताते हैं तो उनकी प्रॉब्लम है। आप ढूंढिए, आपको ऐसे टीचर्स भी जरूर मिल जाएंगे जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, तो आप उनसे बात कीजिए। मैं जहां पे एज अ गेस्ट लेक्चर गई जिन 2-4 जगहों पर, तो मेरे साथ मेरे बच्चे आके बड़े फ्रेंडली सवाल करते, तो 2-4 एक आध तो मेरे जैसे भी होंगे ना, पक्का पक्का। तो आप उनसे पूछिए और वो जरूर बताएं, और बदलाव आएगा, आप ही लोग लेके आएंगे। आपने आज शुरुआत की है, आने वाले कल में आप इसके टॉर्च बेयरर बनेंगे, ये चेंज आएगा। ऑल द बेस्ट फॉर दिस, फॉर योर फ्यूचर। एनीथिंग एल्स? थैंक यू मैम, आपने बिल्कुल सही कहा। और आपके पास कोई एडवाइस है? इतने सारे लोग देख रहे हैं, और जितने भी लोग देख रहे हैं बेसिकली वो लोग, उनकी एज ग्रुप ज्यादा नहीं है, वो लोग सारे टीनेजर्स है, तो आपके पास उनके लिए कोई एडवाइस है कि वो कैसे ये सारे चेंजेस जैसे अभी आपने कहा खुद में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं? सबसे पहले बेटा, मैं सारे बच्चों से, जो आपकी एज ग्रुप के लोग जो देख रहे हैं, और वो भी जो मेरी एज ग्रुप के हैं, जो पेरेंट हैं, जो नए नए पेरेंट बने हैं, या वाकई में वो सारे टीचर्स जो भी इससे इन्वॉल्व हैं, मैं इन सबको एक चीज ये बोलूंगी कि आपकी एज ग्रुप के ऊपर एक टैग लगा हुआ है कि आप रिबेल हैं।
आप रिबिल करने वाले ही रेवोल्यूशन लाते हैं। तो मैं आपके उस टेम्परामेंट को कंट्रोल नहीं करना चाहूंगी, पर मैं ये जरूर कहूंगी कि अपने उस विजन को डायरेक्शन दीजिए, सवाल कीजिए, जरूर कीजिए, और जो जवाब नहीं दे रहा है उससे जवाब पाने की जिद भी कीजिए, पर विरोध करने के लिए एक तो विरोध मत कीजिए, और अपनी बात बहुत स्ट्रांगली और तरीके से रखिए। दूसरे, आज जब हमने इतना डिस्कशन किया है, इस थॉट से अगर आपको थोड़ा सा भी कोई आइडिया मिला है तो उसे लेकर आगे जाइए और एक सर्कल में उसको और स्प्रेड कीजिए, और लोगों को ये बताइए कि जानकारी ही समस्या के अंत की शुरुआत होती है। नॉलेज इज द पावर, वी ऑल सेड ना दिस, कि नॉलेज इज द पावर, और वो नॉलेज सब तक होनी चाहिए। तो हमें वो नॉलेज मिलनी चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए कि क्या सच्चाई है, क्या मिथ है। रॉन्ग इंफॉर्मेशन कभी नहीं होनी चाहिए कि साहब गंदा कपड़ा छू लिया था, कूड़ा छू लिया था, बुखार आ गया था। नहीं, पीरियड एक फैक्ट है, और वो हर लड़की औरत के साथ होता है, और उसकी आप रेस्पेक्ट करिए। अगर आपको ये बात जिनको भी समझ में आई, वो आगे इस बात को कहिए, और बहुत स्ट्रांगली कहिए। स्ट्रांगली कहने का मतलब ये नहीं कि आप किसी से बदतमीजी करें या किसी से लड़ जाएं, या जाकर आप अलग तरीके से अपने दोस्तों को जाके बोले या अपने पेरेंट्स को बोले हाँ हमें पता है इसको पीरियड हो रहा है। नहीं, रिक्वेस्ट भी है अगर आप समझ सकें तो। एंड आई थिंक you get all the And also special thanks to Jyoti